اپنی جس دن میں مانگوں تو پھر تو میں اپنی ذات کا انکار ہی نہیں کیا ہے جی. واہ، جس دن میں کہوں گا یہ دے دے تو میں سمجھتا ہوں اس دن مجھ سے سانسیں نہ لی جائے, واہ. میں ویسے ہی مر جاؤں گا. خدا آپ کو لمبی عمر دے, خدا آپ کو مشن کے لیے کام کرنے کے لیے توفیق دے, خدا آپ کے خواب پورے کرے, خواہشات پوری کرے. وہ دیکھو جی راتوں کو پروازیں کرتے ہیں اور وہ بتا رہا تھا سائمن کے اتنی بڑی تصویر, وہ عجیب سی دنیا تھی, اور وہاں پہ کہا کہ قانون یہ ہے کہ جو وہاں پہ پہنچ جائے اس کو ایک حسین تر لڑکی بھی دی جاتی ہے, خوبصورت. واہ، دیکھا یہاں تو ترس گئے, ملتا ہی کچھ نہیں, لیکن وہ لڑکی وہ بتا رہا تھا اس کا حسن دیکھنے والا تھا. تو پھر وہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عجیب سی, وہ ڈزنی لینڈ کہتے ہیں یہ کیا, جی حضور. ہاں جی, فیری لینڈ, ڈزنی لینڈ, فیری لینڈ. تو کہے اندر کی کیا بات تھی, لیکن میں وہاں پہ وی آئی پی تھا, اس سائمن بتا رہا تھا. واہ تو واہ. وہ حسن کا فکر بھی, اور کہا ابا جان آپ کی وہاں تصویر دیکھے, اب میں کیا بتاؤں, وہاں تصویر دیکھی تو میری روح رو پڑی. ہائے ہائے کہ ادھر وہ کچھ مانگتا نہیں, ادھر رب جہان بنایا جاتا ہے عجیب عجیب سے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو یہ ڈزنی لینڈ فرشتوں کی دنیا میں تھا نا, مجھے تو ڈزنی لینڈ بلایا ہوا تھا جہاں پہ خدا کھڑا انتظار کر رہا تھا, ہے جی. واہ، تو اگر اس کے بعد بھی میں مانگتا ہوا تو پھر یہ میرا نہیں, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. خدا بنا بنا کے خوش کر کر کے آنے والی زندگی, وہ دیکھا نہیں وہ کیا بتا رہا تھا, یہ موسیس بتا رہا تھا ابا جی کی پرواز کیا تھی, بے شک. جہاں نیچے ہوتا تھا وہاں سے پکڑ کے جیسے بچوں کا کچھا پکڑ کے اوپر کر دیا جائے. جی ٹھیک ہے بے شک. ہے جی. جی وہ بتا رہے تھے, یہ بتا رہے تھے, بالکل بتایا تھا موسیس, پروفٹ موسیس بتا رہے تھے. خدا نے ایک بات کہی تھی کہ جہاں بھی کوئی پہنچے گا میرا محبت کرنے والا کسی بھی اگلے جہانوں میں, تو وہاں تیرے پاؤں کے نشان پائے گا. جانے سبحان والے اللہ, سبحان اللہ. جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی. اور اگر پھر بھی مانگوں تو مجھ جیسا کوئی جاہل نہیں ہو سکتا. اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. اب تو یہ بقیہ زندگی یہ ہے کہ راز الہی, وہ دیکھا نہیں خدا کے وہاں اس کا حسن جو تھا وہ بیٹی کا, اور اس نے وہ بتایا کہ اس نے کیا گل کھلائے عیسیٰ نے. سنا آپ نے کہ جی پھر سناؤ, ہے حضور پھر سنا دیں جی. ہاں. تو ہوا یہ کہ میں وہاں پہنچا تو عالم بالا جنت, تو نیچے اترا خدا اور وہ جو 19 بینگ اور حسن کے پرتو پتہ نہیں کون کون سے بیٹے تھے. میری تو رسوائی ہے کہ ابھی تک میں سب کو جان بھی نہیں سکا. ہائے ہائے. واہ، لیکن وہ مجھے یوں جانتے ہیں کہ میری محبت خدا کے دل پہ چھا گئی, بس وہ اس لیے جانتے ہیں. تو پچھلی رات یہ گیا ہوا تھا, آج تو خدا نے کہا کہ یہ
जहान जो है ये जन्नत आलम बाला, ये डिज्नी लैंड है। तो खड़ा हुआ था खुदा और इफ्तिताह कह रहा था कि तू कर इफ्तिताह। तो मैंने तो एक हाथ दिया था ना, एक ये मेरा हाथ था, मेरे एक हाथ को दो हाथों से पकड़ा हुआ था। चाहा था कि तेरा साथ न छूटे, हाथों से तेरे मेरा हाथ न छूटे। समझे कि नहीं? या जी हुजूर। डांकेशन। तो वो मुझे याद आता है ईसा ने जब छोड़ के चला गया मिशन, तो तन्हाई ये आलम था उसकी, बेकरारी बेताबी, फिर फरिश्ते भी ना रहे उसके साथ, खुदा तो पहले ही छोड़ के चला गया था। तो किस्सा यूं हुआ फिर tell me what is I cannot, I don't know. I know. तो इससे पे जो बीती वो ये थी, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, दिल तन्हा तन्हाई में डल जाए। हजूर आपको सॉरी एक थोड़ी सी बात बतानी है मैंने कि आप ना थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे ताकि आपके गले में ना लुब्रिकेशन रहे और गला ज्यादा खराब ना हो। सिर्फ पानी पीते रहे हजूर प्लीज आप। खुदा की बात सुनो भाई, मुझे पानी पी के भी मर जाएंगे। खुदा की बात सुनो, जब प्यास लगेगी पी लूंगा मैं। अच्छा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, दिल तन्हा तन्हाई में डल जाएगा। ये हंसी चांद है या दीदाए हैरां कोई, ये मेरा दिल है या वहशत वीरां कोई, कौन इस उलझी हुई जुल्फ को सुलझाएगा। तो आदम जन्नत जो थी वो भी जहन्नम हो गई जब वो खुदा को नाफरमान ठहरा, और यहाँ दोजख पे चलते चलते ये गुले गुजार हो गई हमारे लिए। बेशक। सुभान अल्लाह। वाह। क्योंकि बचपन से खुदा से एक चीज मांगी थी, उस चीज ने मुझे हर जगह कामयाब कर दिया। वो क्या मांगा था? आप भी मांगे, एक बेकरार मोहब्बत, बेताब मोहब्बत। वाह। फिर ना आप भागेंगे, फिर ना मौत आपका कुछ बिगाड़ सकेगी। कोई 100 ऐसी जगह है मरने के लिए रख छोड़ा था, आज भी जिंदा है। मर तो कभी के जाते हैं। तो अंदर गए तो आंखें देख के ठटर गई, कान वो जो सुरीली आवाज थी, दिल पे जो आलम थे, खुदा ने कहा इसमें एक को मकान आबाद हो सकता है जो तुझे दिया। तो वहां खुदा अपने हाथ से खिलाता रहा, इतना प्यार। एक 21 साल जो बड़ी आजमाइशें गुजरी, तो मैं जगह भी नहीं, मैं जंगल में, बर्फबारी का वक्त था, तो मैं वहां पे लेटा हुआ था। तो जैसे फकीर नुमा खाना बदोश लोग, तो मैं वहां कह रहा था अगर मैं कामयाब ना हुआ तो मैं इन जंगल और ये जो बर्फ है
यहाँ मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। ये वाह। वादा निभाऊंगा, वफादार होकर जो जिंदगी की आखिरी सांसें निकलेंगी, वही मेरी जीवन का सरमाया होगा रूह की दुनिया। ऐसे ऐसे हालात भी है। तो क्या बात है, हमारे लोग कम है आज। जी हुजूर, सभी को इन्फॉर्म तो हुआ है, हम्म, शायद कोई उनके मसाइल हैं जॉइन करने में या कुछ और वजूहात हैं, वो मैं आपको पर्सनल आपके नंबर पे बता दूँगा। चलो ठीक है, तो शुरू करें। एक जी दो हुजूर। है, जी। इनसे पूछ लें। जी हुजूर, हमारे चड्ढा साहब का एक सवाल है, उनको मैं तमाम हमारे मेंबरान के लिए एक सवाल की शक्ल में आपको गोशगुज़ार करूँगा। सबसे पहला सवाल ये है, तहारत और पाकीज़गी के बारे में, जैसे इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में वज़ू करने में और उसके टूट जाने में मसाइल हैं। तो क्या ज़ैदीनी हज़रात जो हैं, उनकी नमाज़ शाम की या रात की 2 बजे की नमाज़ में इस तरह के मसाइल हैं, किसी वजह से रफ़ाए हाजत या किसी और ऐसे उन्वान से क्या वज़ू टूट जाता है या दोबारा नहाना पड़ता है? इस बारे में आप क्या फ़रमाएँगे? अगर तहारत का कोई मुकाम होता तो डड्डू 24 घंटे पानियों में रहते हैं, उन्हें कोई मुकाम मिल जाता। ठीक है, जी हुज़ूर। हमारे यहाँ दिल की तहारत है, ओह! पानियों की तहारत नहीं है। ठीक है, वैसे आदमी को चाहिए कि खुदा की इबादत के लिए पाक साफ हो जाए, तो खुदा पकीज़गी को पसंद करता है। लेकिन इसके बाद ये है कि तूने डड्डियों की तरह, और अगर वज़ू टूट जाए, ये हो जाए, लेकिन दिल की तहारत तो की नहीं तूने, अपने दिल का खतना तो किया ही नहीं। हाँ जी। अच्छा, अब इब्राहीम ने अपना खतना किया खुद, मुसीबत में मुबतला रहा 2-4 हफ्ते, बाकियों के लिए भी वो छोड़ गया ट्रेडिशन, तुम भी ये काम किया करो। दिल का खतना ये है कि अपनी हस्ती को मिटाकर दिल में हर चीज़ निकल जाए ताकि वो आगे उस बागी अदद में बैठ जाए। तो हमारे यहाँ ये फ़ज़ूल चीज़ें नहीं है, ये करो, वो करो। एक बच्चा होता है ना, मूसा का वक़्त था, तो मूसा ने 10 शरीयतें दी। वो 10 शरीयतें क्या थी? ऐसे तहारत करो, रोटी खाते हुए हाथ धो, ये करो, वो करो। जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसको समझाया जाता है। बच्चे चम्मच यूँ पकड़, बच्चे मेज़ के आगे प्लेट ऐसे रख, सड़क क्रॉस करनी है तो बच्चे मेरी उँगली पकड़। फिर एक दौर आ गया, कोई पढ़ता है कोई दौर 1600 साल का, ईसा का दौर आया, वो किसी तहारत पे चला ही नहीं। रोटी खाने लगा तो फ़रसी कहने लगे, भाई तू कैसा मसीह है, ना हाथ धोए, ना पैर धोए, रोटी खाने बैठ गया। क्योंकि जो यहूदी थे वो तो खूब हाथ धोकर, मसल कर फिर बैठते। अब वो हाथ भी नहीं धोए, पाँव भी नहीं धोए,
वैसे ही बैठ गया खाने के लिए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा भाई ये तो कैसा मसीह है, वो भाई पूछ तो ले ये हराम है कि हलाल है, हैं? हाथ मारना शुरू कर दिया। उसने उसका भी इनकार कर दिया। वो इनकार यूं किया, जो खाना जाता है इंसान के अंदर वो फजला बन के निकल जाता है। वो जी, जी। वो गूशू निकल जाता है। जो चीज इंसान को बुरा करती है वो उसके बुरे ख्यालात है, बेशक। उसके दिल के ख्यालात, उसकी बुरी सोचें, ये इंसान को नापाक करती है। दिल की ताहरत ही नहीं की, अंदर से पाक ही नहीं हुआ, ना बुरी सोचें छोड़ी, ना दिल की गंदगी दूर की अंदर से, बस बाहर से हाथ पैर मारा जाए। तो ईसा ने कहा कि ऐ यहूदियों, तुम्हारी तहारतें और तुम्हारी शरीयतें ऐसे हैं जैसे ऊपर से कब्र को सफेद बना दिया जाए, अंदर गंद से भरी हो। हाँ, आपने कितनी दफा सुना जो मैंने बात कही, मेरे कपड़े उतार के देखो तो यहाँ खुदा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बेशक। बहुत दफ़ा सुनी जी। है जी, ये ताहरत है। तुम ऊपर से सफेद बड़े बड़े हुब्बे पहनते हो, सफेद कपड़े पहनते हो, पकड़ियां पगड़ियां, दाढ़ी और ये खजाब, अंदर से तुम बदबूदार कब्रें और हड्डियां, बदबू आती तुम्हारी। उसने वो भी काम नहीं किया। सब्त के दिन वो काम नहीं करते थे। मूसा का वो कहते थे ये त्योहार है। वो सब्त के दिन बीमारों को ठीक करता था। तो वो कहता था मैं ऐसे सब्त को भाड़ में लेके जाऊं कि जहां खुदा का अयाल बीमार हो और मैं ईद मना रहा हूं। तो उसने इन सब के कामों के खिलाफ किया। तो मेरे को बता दे अपने दिल क्या, जो चीज बुरी करती है आपको, वो ये नहीं कि आपकी वो जो अपना वजू करो, ये करो, वो करो, ये ना भी हो तो खैर है, लेकिन अंदर की तहारत ये अपने दिल को पाक करो। वाह! जी। क्योंकि खुदा की जात कहती है पाक दिल मेरा दीदार करे, हाँ, पाक दिल मेरा दीदार करेंगे, जो सुलह कराएंगे वो मेरे बेटा बेटी हो। वाह! ठीक है, तो शरीयत की वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं जब हम चटनी बनाते थे, वो पत्थर वो सिल क्या कहते हैं यार, और पंजाबी में जो बुरा कुंडी डंडा कुंडी डंडा कुंडी डंडा जी, वो जी। चटनी बनाते थे। तो इस फजूल चीजों पे रगड़े पे दे रगड़ा, हाँ, ठीक है, रगड़े में रगड़ा रगड़े में, लेकिन जो चीज खुदा से मिलाती है उसको तुम भूल ही गए हो। रहम करना, क्या करना, रहम रहम। रहम रहम करना रहम करना। रहम की निगाह से देखना। जब मैं किसी को देखता हूँ तो मुझे रहम की निगाह से देखता हूँ। वो बात करता तो उसको ऐसे सुनता हूँ जैसे कोई मौसीकी, रहम आता है उसकी उसके दुखों पर। ठीक है? इंसाफ, इंसाफ क्या है, उसकी तारीफ ये है जो तू नहीं चाहता कि दूसरे तेरे साथ करे सलूक, तू भी उनके साथ ना कर। वाह! अगर तू चाहता है कि लोग तेरे साथ नेक सलूक करें, मोहब्बत प्यार, तो तू भी उनसे वही सलूक कर।
تو रहम, इंसाफ, मोहब्बत है। इनको निकाल देते हो और रगड़े पे दे रगड़ा है। तो इस बात पर ईसा ने कहा था कि तुम्हें शरीयत तो मिली, किससे मिली? फरिश्तों के जरिए, लेकिन तुम उस पे अमल नहीं कर सके। है? तो ऐसी शरीयत का हम क्या करें कि अल्लाह अकबर कह के किसी का गला काटा जाए, हमें ऐसी, हम जी, बर्बाद हो जाए ऐसी शरीयत। ठीक है, आज कोई कितना ही गुनाहगार हो यूरोप में या फ्रैंकफर्ट में, अगर कोई ये कहे कि इसने ये कसूर किया, उसका गला काटे, तो वो लोग पागल हो जाएंगे देखने वाले। जी, जुल्म की चक्की के अंदर शरीयत को रखकर उसकी चटनी बना रहे हो, लेकिन जो चीजें रहम, प्यार आ गया, मोहब्बत आ गई, दूसरे पे तरस, जो असल चीज तुम्हारी रूह से अंधेरे दूर करती है, उसको निकाल दिया, तो अब तेरी रूह भी गंदी, बदबूदार रहेगी। भाग भाग के अपना वजू करना, भाग भाग के, अगर वो कहीं से वो फूक निकल जाए, वो वजू टूट गया, फिर करो जी वजू, फिर करो जी ये है, ये फजूलियात से अब हमें निकल जाना है। अभी कुछ दिनों की बात है, मैं सोचा कि अपना रात का वक्त था, तो दिन में काम बड़े थे, तो मैंने कहा नहा के खुदा के हजूर पहुंचे। अभी नहाने का इरादा किया कि आसमानी हाथ आया और मुझे आलम बाला जन्नत तो मैं नहलाने। वाह! वाह! तू यहाँ पानी से नहाता है, हाँ मैं तुझे अपने नूरों से नहलाऊं। ठीक? जी, वाह 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 वाह। मूसा भी देख रहा था, फरिश्ते भी देख रहे थे कि जितनी बारिश हो रही थी नूरों की, प्यार की और मोहब्बत की, वो मुझ पे ही बरस रही थी और किसी पे नहीं बरस रही थी। वाह! जब मैंने हाथ फैलाए तो फिर दूसरों पे भी बरसने लगी। ठीक है, वो क्या था कि इकबाल का शेर में है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। बता तेरी रजा क्या है। तो मैं एक नसीहत कर देता हूँ इस वीडियो में ही अपने मेंबरों के लिए, ज़ाहिरी जी, बीनी, ज़ाहिरी बातों में नहीं फँसना, क्योंकि हम तो नई दुनिया की तलाश में बहुत दूर निकल गए हैं। अगर हमारी भी वही पाकिस्तानी आते रहेगी, उसी पूरी दुनिया के चक्कर काटते रहेंगे, तो मेरी आपसे मौत के बाद कैसे बनेगी? मैं तो भी जी, नई दुनिया में पहुंच चुका हूं। आपने वहां भी पहुंच के मेरे से पाकिस्तानी वाली बातें करनी है, तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ जी? जी, सर। नया इंसान ही जब बनता है, नई जुबान ही जब मिलती है, नए ख्याल ही जब मिलते हैं, नई सोच ही जब मिलती है, नई मोहब्बत की दुनिया से मुतारफ ही जब होता है, जब वो सबसे पहले खुदा को मिल लेता है। बेशक, उससे पहले वही फजूलियात किस्म, जब पाकिस्तानी बात करते हैं ना, तो मुझे घिन आनी शुरू हो जाती है। वही पाकिस्तानी ख्यालात, वही पाकिस्तानी बातें भी उनकी बड़ी अजीब सी लगती है मुझे। और मैं बात आसमान पे मुंह करके देखता हूँ, रब इस कौम में मुझे पैदा किया था,
जी, इस गंध के अंदर मुझे वो याद आ गया शेर, कभी कभी खिलते हैं वो कांटों में फूल, समझे कि नहीं? ये कांटों में फूल खिल गए, वरना ये इतनी बदबूदार कौम है, बल्कि यूं कह ले ये आबे का आबा ही बिगड़ा। जी, इनकी अक्लों को घिन लग गई है, इनकी सोचों को घिन लग गई है। तो वो बुद्ध ने कहा था ना, इतनी पूरा जीवन तलाश की बबरू की, उस हंसी की, बाद में पता लगा कि वो जो जंग लगा हुआ था वो तो मेरे दिल पे है। फिर उसने जंग दूर किया अपना, वरना वो भी हिंदू ही था। जी, जब वो मिल चुका तो एक नया इंसान बन गया। मैं आपको एक और बड़ी बात बता देता हूँ, हर रिश्ते जो है कहीं ना कहीं आखिरत में टूट जाएंगे, सोचें बदल जाएंगी, ख्यालात बदल जाएंगे, और खुदा की कसम मोहब्बतें बदल जाएंगी, लेकिन एक मोहब्बत नहीं बदलेगी, वो खुदा की और खुदाए वाहिद। वाह! बेशक। तुम ना बदले सनम, सारी दुनिया सुभान अल्लाह, बदले, सुभान। बस वो नहीं बदलेगी, वो जो मोहब्बत है वो कटी पतंग की तरह उड़ाते उड़ाते न जाने कहां से कहां ले, वहां से वहां ले जाएगी कि आप कहेंगे हम रहे ना हम, तुम रहे ना अ, तुम, वक्त ने किया क्या हंसी से, ऐसे मांझ मांझ कर वाह, आपका पांडा चमका देगा, ऐसे मांझ मांझ कर कि आप अपनी हस्ती को देख के हैरान हो जाएंगे, मैं क्या था, मैं क्या रह गया। बेशक। तो अब आप चल ही पड़े हैं मेरे साथ, तो मैं तो नई दुनिया की तलाश नहीं करता, मैं तो पहुंच चुका हूं। जी, बेशक। मैं आपको कह रहा हूं गधों की तरह अपना बोझ उतारो, और इतना उतार लो कि जब आप बात करें तो पाकिस्तानी ना लगे, ठीक है? क्योंकि इनकी बातों के अंदर भी आप कभी गौर किया है, अजीब सी बदबू, अजीब सी घिन, अजीब सी उलझने, उलझने, जी, हुज़ूर। अजीब से, दिल मेरा जो है बेजार हो जाता हजूर हर चीज में चीटिंग करते हैं, हर चीज में चीटिंग। है। चीटिंग तो करते हैं, चीटिंग के अलावा इनके ख्यालात भी तो बहुत बुरे हैं। जनूनी अब जनूनी। हाँ, तो एक गधा था और एक ऊंट था, वो नहर क्रॉस करते थे, तो जब वो नहर आती तो गधा बैठ जाता, नहीं नहर आती तो खोता पानी में बैठ जाता, और खोता कह रहा हूँ, जब नहर आती तो ऊंट पानी में बैठ जाता, जी, हुज़ूर। उसका मालिक उसको बड़े डंडे मार, वो डंडे खाता रहता लेकिन काफी देर बैठा रहता। खोता ये चीज देख के बड़ा हैरान होता। तो एक दिन उसने खोते ने कहा ऊंट साहब से कि भाई इतनी मार पड़ती है लेकिन नहर आती तो पानी में बैठ जाता है। उसने कहा क्या बताऊं, जब नहर आती है पानी में बैठता हूँ, डंडे तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन जब मैं उठता हूँ तो मैं हल्का फुल्का हो जाता। जी, हुज़ूर। तो यहाँ डंडे खा ले ताकि हल्के फुल्के हो जाए, ठीक है? जी, कहीं ये ना हो कि आपका जांघिया पकड़ पकड़ के भी प्रवाद करनी पड़े हमें,
ठीक है, एक तरफ से अतर का जांघिया पकड़ा हुआ, दूसरी तरफ से हमारे क्या नाम है सूरज साहब का जांघिया। भाई सारी जिंदगी मैं यहाँ से जान छुड़ी, वहां रूह की दुनिया में जांघिया पकड़ता फिरूं मैं सबके, है जी, एक हर एक, है जी, मेंबरों के जांघिए पकड़ पकड़ के, कईयों के तो जांघिए भी फट जाएंगे, उनको नंगा प्रभात पहुंचाना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा, उसने कहा हाँ, मार तो बड़ी पड़ती लेकिन फिर अगला सफर जो है वो बड़ा हल्का फुल्का। उसने कहा अच्छा, तो ये काम मैं भी करूंगा। तो अगला मौका मिला तो गधा भी बैठ गया, बैठ तो गया, उठा ना जाए, मार मार के उसको। तो हुआ ये था कि अकल के साथ नकल के साथ अकल की भी जरूरत है। जी, वो उसका मालिक नमक की बोरियां डालता था उसके ऊपर, ऊंट के ऊपर, तो वो हल्की हो जाती थी। तो ईसा कहते हैं अगर नमक का जायका ना रहे तो फिर तो किस काम का। वाह! ये उठा के बाहर फेंक देते। अच्छा, वो जो गधा था उसने ऊन उठाई हुई थी, ऊन तो फिर और भारी हो जाती है। तो ये जो दुनिया की दौड़ में है, ये गधे हैं, जी, बेशक। असल गधे ये है, माल लाद लाद के लाद लाद के लाद लाद के, इनको ये नहीं पता कि ये कितना भारी हो जाएगा। तो अब ये मार्फत इलाही जो है वो बहुत दूर की सोच देती है, बहुत दूर की निगाह देती है। मार्फत इलाही बताती है कि तू यहाँ चंद दिन, जैसे कोई शख्स होटल में क्याम करे, फिर उसने चले जाना है। अब मैं था वहां पे, तो मुझे पता था 2-3 दिन 3 दिन होटल में मैं फिर चला जाऊंगा, मुसाफिर हूँ, जी, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, होटल में मुसाफिर हूँ, चला जाऊंगा। तो जब आदमी मुसाफिर होता है तो वो बोरे थोड़ी डांटना शुरू कर देता अपने ऊपर, मकान थोड़ी बनानी। जिस मकान में सदा रहना ही नहीं उसको बनाना है। इतनी गुंजाइश रखो बस गुजारा हो जाए। अच्छा, कुछ पूछना है तो पूछे। जी, हमारे किसी और मेंबर का सवाल हो तो प्लीज़ वो हुज़ूर से गोशगुज़ार कर सकते हैं। नदीम भाई आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ? प्लीज़ जी, अपना जी, माइक जी। जी, जी, हज़रत खुदा की खुदा सलामती हो हुज़ूर। हजूर आप पे भी सलामती हो। अच्छा आगे। हुज़ूर मेरा जी, हाँ जी। अच्छा हुज़ूर वैसे तो आपने वो जो मेरे दिल में था वो ही तकरीबन बता ही दिया। अच्छा मैं ये पूछना चाहता था कि सोच और नीयत में हुज़ूर के क्या कोई फ़र्क है? जब बुरी सोच दिल में आए, लेकिन नीयत ऐसी ना हो, तो इस सूरत में रूह में हुज़ूर क्या जाएगा? नियत जो है ये गाड़ी का स्टेयरिंग है। अब आपके हाथ में स्टेयरिंग है, आप इसको जिधर घुमा देंगे गाड़ी घूम जाएगी, ठीक है कि नहीं? जी हुज़ूर। फिर आपकी सोच आ जाए कि नियत कह रही है ये राह गलत है, नियत बता रही है। मोहम्मद साहब की भी हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। नियत कह रही ये राह गलत है, और सोच जो है
आपकी नफ्स की कहती है वो छोड़, दाएं को घुमाने की बजाय बाएं को घुमा स्टीयरिंग। तो आपने फिर वो नियत जो है उसका अख्तियार ले लिया आपने वापस। तो वो जो बुराई की सोच है उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। अब वो बुराई की सोच ने स्टीयरिंग संभाला, उसके नताइज भी तो कुछ निकलेंगे। नताइज ये निकलेंगे कि खाना खराब होगा, और फिर वो काम करवा दिया उसने। तो नियत के बाद सोच पे काबू रखना बहुत, यानी कि बहुत अहम चीज है। जी, यानी मैंने एक, फॉर एग्जाम्पल, अहद किया खुदा के साथ, इस नियत के साथ मेरा जीना मरना तेरे साथ है, खुदा के साथ। बाद में अजीब अजीब सोचें आई, नफ्स देता रहा, दिमाग के पुर्जे ढीले पड़ गए, सफर लंबा था। लेकिन उस नियत को सामने रखकर मैं सफर करता रहा। तो वो जितनी सोचे थी फिर वो पीछे ऐसे रह गई जैसे आप गाड़ी में बैठे या रेलगाड़ी में। जी सर। तो आपने नियत करके बैठ गए रेल में, तो दरवाजे ही बंद हो गए। अब आप चाहे जो मर्जी सोचते हैं, घड़ी तो आगे जाना ही जाए। ठीक, वो जी, जी। मंजर नामे वो जो देख रहे हैं वो गुजरते जाएंगे। तो जो अहद वफा है वो पहला नियत से ही शुरू होता है। तो कभी जब नियत खराब ना हो और सोच ले जाने की कोशिश करे तो अपने अहद वफा को याद किया करें। वाह! बेशक। उस वक्त अहद वफा को याद किया करें। दूसरे मैं आपको बता दूं, ना अबलीस ना शैतानी कुव्वतें आपका कुछ बिगाड़ सकती है। मिसाल के तौर पे आपका एक हवाई अड्डा है, हवाई हवाई अड्डा है। जी, उस हवाई अड्डे पे आप जिस जहाज को चाहेंगे वो ही उतरेगा, ठीक है। और जिस जहाज को नहीं चाहेंगे आप उसको नहीं उतरने देते। तो ये दिमाग जो है ये आपका हवाई अड्डा है। क्या है? हवाई राइट। अड्डा। जी, आप ना उतरने दें उस बुरी सोच को, तो वो जहाज उतरेगा कैसे? नहीं उतरेगा जी। अबलीस ने भी यही बात की है कि मेरा इन पे जोर नहीं चलता। क्या कहा? मेरा इन पे ज़ोर नहीं जोर चलता। नहीं चलता, जोर तेरा है रब। तो जहां जोर तेरा है असल में रब, ये नियत हो गई। मैंने इनको वसवसा डाला, बुरी सोच डाली, ये चल दिए। तो मैंने बुलाया, ये चल दिए, तो ये मेरे हैं, तेरे कैसे हो गए? हुँ, तो ये कह के अबलीस ने भी अपनी जान बचाई। मेरा इस पे जोर नहीं चलता था, मैंने एक वसवसा डाला, बुरी सोच दी। तो इसका हवाई अड्डा था, दिमाग था, ना लैंड करने देता उस सोच को। क्या करे जी? जी, ज़रूर बेशक। ना करने देता लैंड। तो जब आप सोच को लैंड ना करने दे, बुरी सोचों को, तो कुछ वक्त के साथ साथ फिर वो सोचें कमजोर हो जाती। जी, बेशक। इसकी मिसाल यूं दे देता हूं, एक महल बनाते हुए उसके अंदर कई हजार लोग चाहिए, बड़ी मुसीबत के साथ काम होता है, बड़ी मुश्किल आती है, लोग मर भी जाते हैं। यूरोप में बहुत से महल हैं,
لیکن جب وہ بن جائے تو اس میں رہنے کے لیے ہر کوئی آ جائے گا. جی بے شک. ٹھیک ہے. تو دل کا جو محل ہے اس کو کون بنائے؟ آپ کی نیت، آپ کی سوچیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کا شعور، آپ کی قوت، سب طاقتیں لگیں گی تو یہ محل بنے گا. اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ روحانی سفر سے مراد بس 6 سال کا کورس ہے جیسے میڈیسن کا ہوتا ہے، بس میں ڈاکٹر بن گیا. نہیں نہیں، ایسا نہیں. یہ پورے جیون کا کورس ہے. یہاں تو اپنی جان کو بیچنا پڑ جاتا ہے. سوچوں کو ایسے رگڑے لگتے ہیں کہ سوچیں خود ہی بھاگ جاتی ہے. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں تاکہ پھر بات اور واضح ہو جائے. موسیٰ نے خضر سے کہا میں تیرے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ علم میرے پاس زیادہ ہے. انہوں نے مجھے ادھر بھیج دیا. انہوں نے کہا اچھا آ جا. کشتی پہ بیٹھے تو کشتی والوں نے خضر کو دیکھ کر، کیونکہ وہ صوفی قسم کا آدمی تھا، اس کی عقیدت، پیار محبت میں پیسے بھی نہیں لیے. اور جب وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو کشتی والوں نے ان کی سیوا بھی کی. آنکھ بچا کر خضر نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا تاکہ اس میں پانی آ جائے. اب یہ جاہل گدھے جو ہے، ان کو یہ قرآن میں ہے واقعہ، ان کو اس چیز کی بھی سمجھ لگے. پھٹا توڑ دیا، کنارے پہ پہنچے. اس نے کہا موسیٰ نے تو کس قسم کا آدمی ہے، نہ انہوں نے ٹکٹ لی، پیار محبت، عقیدت، بڑی ہماری سیوا بھی کی، تو نے آنکھ بجا کے پھٹا توڑ دیا. تو کہیں اب یہ کبھی طوفان یا کشتی ڈگمگائی یہ تو پانی آ جائے گا اندر. خضر نے کہا میں نے تجھے پہلے نہیں کہا تھا، میرے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں. اب یہاں غیب کا مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں میں آپ کو. ان کو قرآن سے ہی حل کر دیتے ہیں تاکہ یہ چیخو پکار نہ کرے. خدا کی ذات کہتی ہے میں نبیوں کو غیب کا علم اتنا دیتا ہوں جتنا میں دوں، اس کے بعد ان کے پاس بھی کوئی علم نہیں رہ جاتا. بے شک. قرآن میں بھی ہے کہ من علم ہی الا بما شاء، جو میں دوں من علم ہی الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. میری کرسی علم کا خزانہ ہے، سب پر چھائی ہے، اور جو میں چاہوں وہ دے سکتا ہوں. علم مثال کے طور پر جو معاملات آگے جا کے آئیں گے اس کا علم خدا نے مجھے دے دیا. بے شک. علم غیب ہو گیا. لیکن جو نہیں دیا، میں بھی پھر عام آدمیوں میں ہی ہوں، مجھے بھی کچھ نہیں پتا. تو جو لوگ کہیں گے لو جی عالم بالا میں تو جنتوں میں سیرے کرتا ہے، اپنی موت کا دن پتہ ہی نہیں. جی بے شک. کہیں گے اتنی لمبی بات. اچھا خیر، تو کشتی کی طرف آتی ہے. انہوں نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا تیرے پاس علم نہیں ہے. تو وہ تو باقی بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. تو یہ کشتی کیا چیز ہے؟ اس نے کہا سن لے. موسیٰ کو کہتا ہے ابھی کچھ دن بعد ایک ظالم بادشاہ آئے گا، تو وہ
उनने जंग पे जाना होगा तो जो जो अच्छी अच्छी कश्तियां हैं वो सब छीन के ले जाएगा। ये अच्छे लोग थे, प्यार मोहब्बत करने वाले। मैंने फट्टा तोड़ दिया, तो जब इस कश्ती को नकारा देखेगा तो इनको छोड़ के चला जाएगा, नहीं लेगा। वाह वाह जब कश्ती साबित और सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। किसका वाह, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे। तो जब वो इस कश्ती को टूटा फूटा हो गया, इसको क्या लेना। अब इस कश्ती की मिसाल जाहिरतन अब रूहानियत में देते हैं। जो सूफी है, साधु है, नॉन कॉम्प्लेक्स, जो भी बुद्ध है, बुद्ध कहते हैं खुदा का दोस्त, जी हुजूर, ये सब लोग शिकस्ता कश्ती है, इनके फटे टूटे हुए हैं। वाह वाह बात समझ में आ रही है आपकी। जी हुजूर, इनके सबके फटे टूटे हुए हैं। तो यहाँ जितनी भी बुरी रूहें आती हैं अंदर, तो जब वो देखती हैं कि अंदर तो ये शिकस्ता दिल, टूटा हुआ दिल, इसके तो यहाँ तो मुसीबतें पड़ी हुई है, वो सारी बुरी रूहें भाग जाती हैं या इसके अंदर जाके। अब वो उसके अंदर जब जाती है, जो कोई हट्टा कट्टा मुस्टंडा हो, ठीक है, बना सवार के रखा हो, तो फिर वो एक बुरी रूह आती भी है तो वो कहती, साथ और को लेके आती है, कहती भाई उसने अपने आप को खूब दुनिया में बना सवार के रखा हुआ है, तुम भी आओ, हम सब घुसे उसके अंदर। ठीक है। अब वो जी शिकस्ता कश्ती जो है, वो बेचारा मारा मारा फिरता है खुदा की तलाश में, कभी भूख में, कभी नंग में, कभी खाना बदोश, कभी यूरोप के 21 साल हो गए पुलों के नीचे। उसके अंदर बुरी रूह क्या आएगी। बेशक शिकस्ता दिल हूं, मुझे किसी से प्यार नहीं। वो तो ये शिकस्ता कश, ये जो जितने सूफी सब नबी, ये सब शिकस्ता कश्तियां है, शिकस्ता दिल है। यहाँ शैतान आके क्या करेगा, वाह वो तो हट्टे कट्टे मुस्टंडों पर जाएगा, उन पे हाथ फेरेगा जाके। ठीक है। तो एक दिन मैं जंगल में बैठा हुआ था, जंगल की बात करो, सॉरी, मैं ऑस्ट्रिया के अंदर मैं पुल के नीचे था, सर्दी पड़ी थी माइनस। तो कुछ देर के लिए अबलीस आया, मुझे देखा, तो क्योंकि मेरे पे जो बीत रही थी उसको भी ठंड लगी थोड़ी सी। ठीक है। जी हुजूर, वो वहां पे 5 मिनट नहीं खड़ा हुआ। उसने कहा भूख से इसका बुरा हाल, अंदर शिकस्ता, लगता है यही मर जाएगा इस माइनस सर्दी के अंदर, मेरा यहाँ क्या काम। ठीक है। तो जाते जाते एक टिप दे है मुझे, कहा काश तू जरा ईसा की तरह मोइदे दिखाता ना, तो फिर हम भी तेरे साथ बैठते। वाह तू शिकस्ता दिल, शिकस्ता कश्ती। यहाँ तो ये भी नहीं पता कि कल क्या होगा, तो जहाँ ये भी नहीं पता कल क्या होगा, तो मैं तो जब आऊंगा भाई जब तू खुदा की दुनिया लाएगा। अब वो मोइदे मैंने मांगे नहीं थे, बुरी अरवाह आती भाग जाती। वाह अगर मैं भी मोइदे मांग लेता, ये भी दे दो वो भी दो, खूब हट्टा कंटा मुशंडा होता, तो फिर शैतान और बुरी अरवाह ने कहना था हाँ अब हम चले। हाँ? जी हुजूर, ये है। तो उम्मीद है वो फर्क साबित हो गया होगा, नियत और सोच। जी हजूर, जी हजूर। बस जी फिर वो एक वक्त आता है, वो जर्मन में कहते हैं उबुंग मख्तन मास्टर, कि आप प्रैक्टिस करते करते आपकी सोचे भी आपके नियत का संगम बन जाती है। वाह पर जब
शुरू में मुश्किलात आती हैं, कमजोरी छा जाती है, नफ्से हमारा फैसला नहीं कर पाता, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद नियत और सोच का संगम एक हो जाता है। उसके बाद जो नताइज निकलते हैं वो नूरे इलाही है। तो उम्मीद है कि आप नियत ठीक होगी, बुरी जब सोच आए ना तो एवं ही नहीं अपना धोबी पटका अपने आप को पड़वा देना, ठीक है, वो बुरी सोच से जी जरा हजूर, खाड़े में उतर के खुद भी लौट है। जी हजूर, या जी, अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व अब्तगू इलैहिल वसीलता व जाहिदू फी सबीलिल्लाह। ए मर्दे मुजाहिद, अगर तू खुदा का मुजाहिद है तो अपने से जहाद भी तो करके दिखा। बेशक। एवं तलवारें लेके फिरा हुआ है पार में, हवाओं में मुक्के मार रहा है जी। मुझे तो अभी वो मैं तो बड़ा हंस पड़ा था, अभी 2 दिन की बात है, नोहा भी बैठा हुआ था, मोसेस भी बैठा हुआ था, तो साइमन भी, तो मोसेस की बॉक्सिंग आ रही है, तो ये तो 8-9 इसकी फाइटें हो चुकी ना नोहा की, जी हजूर। और जीत चुका है। ये तो खूब मुक्के खाकू के बैठा हुआ है। जी। तो इसकी फाइट आ रही थी मोसेस की, तो बात बात पे कहे जाए नोहा जरा अपनी नाक को बचा ले। जी। मोसेस को गए, उन्होंने कहा बार बार तू नाक को कहे जा रहा है, किसी और चीज को नहीं बचाना। उसने कहा नोआ ने, इस 10 फाइटों में मैं तुझे क्या बताऊं, जितने भी मुक्के पड़े वो नाक पे पड़े, वाह वाह। क्योंकि आगे पीछे जो पड़े वो तो बताश हो गए, लेकिन जब ये नाक पे पड़ता था ना तो मेरी 14 तपक रोशन होते थे। इसलिए मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ, अब जब तेरा लड़ाई हो तो तेरा नाक को बचाना है, ठीक है। जी। बच्चा है लेकिन अखाड़े में उतरा है, उसको भी पता लग गया है कि जहाद क्या होता है, लड़ाई क्या होती है, ठीक है। जी, बेशक। हाँ, तो अगली दफा नियत ठीक, बुरी सोच आए, आपने भी लंगोटा कस के जरा सोच के साथ दंगल करना है, ठीक है? ओह, बेशक। फिर आप खुदा के मुजाहिद बन जाएंगे। हाँ, वो जाहिदू फी सबीलिल्लाह, फिर आप उसके मुजाहिद बन जाएंगे। तो मैंने जब 55 में 8 साल की उम्र में कुरान हिफज किया, तो हिफज तो मैं कर गया, बल्कि मेरा ये हाल था 5 सिपारे में धड़ाधड़ जैसे कोई घोड़े पे बैठा हुआ है। तो लेकिन फिर जब अमल करने का वक्त आया तो पता लगा कि मुक्के हवाओं में नहीं मारे जाते, ठीक है, जी हजूर। करके दिखा। तो अपने साथ एक लंगोटा रखना है कि मैंने जहाद करना है, अगर अगली दफा ये बुरी सोच आई तो, जी हजूर, हाँ? कहीं ऐसा ना हो कि वो लंगोटा भी ले जाए, हाँ? सब कुछ ही ले जाए। ए आदम की औलाद, तेरा ख्याल करना, जैसे तुम्हारे अम्मा अब्बा को नंगा किया था, कहीं वो तुम्हें भी नंगा ना कर दे। अब जी, आपके पास एक लंगोटा रह गया, उसको भी गंवाना है, तो भी मैं अब दुआई कर सकता, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी दंगा कर दे। भाई मैं कसम खाता हूँ 50 साल में मैं भी आदम हूँ मसीह, मैंने अपने अंदर वो बातें नहीं देखी जो इस पुराने आदम में देखी। वाह।
एक औरत के लिए खुदा को छोड़ जाना वह कोई बात नहीं। एक औरत की मोहब्बत के अंदर मिशन को भूल जाना ये कोई बात नहीं। एक औरत के लिए ससुराल के पीछे जा रहा है। जब मैं सोचता हूँ ना ये मैं ये बातें कर रहा हूँ, ये हमारे पे भी वक्त है। वो हंसी थी, उसको फिल्मों में ले लिया गया था, वो सब कुछ था, दुनिया मिल रही थी उसकी एक बात पर कि क्या खुदा को हमारी मोहब्बत पसंद नहीं। उसकी इस बात के ऊपर मैंने खाना बदोशी इख्तियार कर ली, दर दर की ठोकरें कबूल करना, लेकिन मुड़ के उसकी शक्ल नहीं देखी। अता साहब कोई और सवाल? जी हुजूर बहुत शुक्रिया जी। हुजूर हमारे किसी और मेंबर का सवाल हो तो प्लीज़ वो हुजूर के गोश्त भट्ट साहब आप यहाँ पर हैं और आपके हुजूर से सवाल बात पूछना चाहें तो प्लीज़ यू मे वेलकम। हुजूर खुदा की सलामती हो। आप पर खुदा के सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी सब शुक्र है हुजूर, दुआएं हैं आपकी। बस सुन रहे हैं आपको और बस यही कहते हैं कि बस आप रुका ना करें, बस जारी रखा करें। हुजूर की तबीयत नासाज रही है जी तो बस इसलिए थोड़ा-सा जी हुजूर अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं बहुत करने हैं। भाई सोचा तो मैंने ये था कि यूं हो जाए, बताता हूँ आपको। हम आपस में लोग बैठे हुए, कोई बोलने का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ। ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप भी अमर हो जाए। हैं? आप भी बोले, आप क्यों नहीं बोलते? जब आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे, ठीक है? तो ये हुजूर सारा हमारे पास कोई चीजें नहीं है, इल्म नहीं है जो आपके पास है। चलो ठीक है, अब आ जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा है कि ये ठेका मैं आपको दे दूँ बोलने का। जी इंशाल्लाह जरूर। थोड़ा थोड़ा ठेका है, अभी इन्होंने लिया है मुझसे। अतर साहब ने तो देखो क्या बीती हुई है जी। जी। अभी और दूंगा इनको ठेका जब इधर आ जाएंगे। तो जो जो ठेका मैं चाहता हूँ ये सारे, अब मैं ठेकेदार ही ना रहूं और वो खुदा की बात पूरी हो जाए कि मैं तुझे अपने अहले मोहब्बत दिखाऊंगा। हाय बेशक। हाय, जब वो आएंगे तो वो क्या होंगे। तो फिर मैं खुदा को भी कह दूंगा भाई ये सारा बोलने का ठेका मैंने थोड़ी लिया हुआ है जी, ये भी बोले। हाँ? इनको भी लेके जा सफर पे, जहानों का रब है, इनको भी पहुंचा कहीं ना कहीं। जब आए तो ऐसे आए जैसे डगमगाते आ रहे हैं, है जी। ऐसे आए वापस कि कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा। तो फिर हम भी कहेंगे भी ये अब बोलने के काबिल। तो मैं महफिल में बैठा हुआ था तो हमारे वो सिंह बैठे हुए थे मानने वाले। तो उन्होंने कहा जी हजूर आप बात किए जाए। तो सिंह ने कहा कोई हजूर ने ठेका नहीं लेता है, हाँ जी, तुसी भी बोलो। तो हुजूर जो आपकी कुछ इजाजत हो आप तो हाँ जी, आपकी इजाजत हो तो मैं छोटी सी आपको प्रॉब्लम बताऊं या हैंडी पे बता दूं? भाई खुदा की बात करनी है। जी जी, मैं खुदा के मिशन के लिए आपके पास पहुंचना चाहता था, उसमें जो मसला हल आया है वो बताना था। अच्छा जी रिकॉर्डिंग हो रही है तो अभी ना बताएं आसिम साहब। अभी ना ठीक बताए। ठीक है जी, आपको हैंडी पे बता दूं। हाँ जी, अभी ना बताए। अच्छा अतर साहब नीचे गिर पड़े हैं। हजूर मैं ऑन कर लूं कैमरा? हाँ करते हैं। किसी की तो शक्ल देखिए, यहाँ सारे ही छुपे शेर बैठे हुए हैं। जी किसी और मेंबर का सवाल हो तो प्लीज पूछें। हाँ जी,
जी। अच्छा, किसी चलो और सुनना मेंबर चाहते हैं व्हाट्सएप तो अ, हुज़ूर किसी और अगर मेंबर का सवाल नहीं है तो मैं एक बात आपकी गोशगुज़ार करना चाहूँगा। अ, ये मैं हमारे मेंबरान के हवाले से ही है। हुज़ूर सबसे पहले तो जब हम आपका सेमिनार शुरू हुआ था, तो उस सुबह की बात है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसी काउच पे मेरी बाईं तरफ इतना बड़ा नीले रंग का आसमानी नूर का गोला आके बैठता हुआ देखा। वाह वाह और इन फिर जब सेमिनार शुरू हुआ, तो वही नूर का गोला आपके पीछे खड़ा था, अल आपके और ब्रदर वाह मोसेस के दरमियान, जिसको हमारे वाह बहुत सारे मेंबरान ने मुशाहिदा किया, हमने वाह स्क्रीनशॉट भी लिए और मेंबरान को बताया भी जिन्होंने अभी नहीं देखा था। तो ये खुदा की इनायत हुई जी। और उसके बाद अब चौथा दिन है हुज़ूर कि मैं 4 दिन से हर रात खुदा की ज़ात का दीदार कर रहा हूँ। कभी वाह माशाल्लाह जर्मनी में, माशाल्लाह माशाल्लाह कभी अफ्रीका में, कभी बाला जनतों में जहाँ पर बिजलियाँ वाह चमकती हैं और उन उन बिजलियों में खुदा की ज़ात की क्या झलक दिखाई देती है। वाह क्या अनाया और ये खुदा की इनायत है जी। और जो इस चीज़ से रेलेवेंट मैं बात हमारे मेंबरान के सामने गोशगुज़ार करना चाहता था कि ये मेरे साथ या हमारे कितने मेंबरान जिनके साथ ये मामलात पेश आ रहे हैं रूहानी सफ़र के, जी ये ऐसा उन लोगों के साथ क्यों हो रहा है जिनके साथ ये हो रहा है। जी सबसे पहले जो मैंने और ब्रदर सूरज खान साहब ने भी इस बात की तायीद की, जो हम मुशाहदा कर रहे हैं इन दिनों अपने रूहानी मुशाहिदात से, जी वो ये है कि खुदा की ज़ात हमें ये रियलाइज़ करवाना चाहती है अब इस वक़्त जी कि मेरा जो दिल है, ज़ाहिद खान मसीह ज़माना ये किस दौर, किस सफ़र से, किन कुर्बानियों से गुज़रा है। वाह वाह जो लोग मसीह ज़माना को जानना चाहते हैं, अल्लाह का दिल कौन है, मसीह ज़माना की नई तालीमात क्या हैं, रूहानियत क्या है, जितने मज़ामीन हैं, उन सब के पीछे वो एक सफ़र पोशीदा है, जिस वाह सफ़र की ग्रेविटी कोई और उठा नहीं सकता और जिस शख्स ने ये उठाई वो ग्रेविटी, वो कुर्बानियाँ दी जिस शख्स ने, उन कुर्बानियों को जानना ज़रूरी है। वाह क्यों? ताकि इंसानियत उन कुर्बानियों के पीछे छुपे हुए दिल की कदर-ओ-कीमत जान सके कि वाह उसने वाह कुर्बानियाँ क्यों उठाई? वाह वो वाह कैसी मोहब्बत थी इस शख्स वाह की, जो इतनी कुर्बानियाँ हम्म उठाने का अज़्म इसके अंदर आ गया। तो ये खुदा की ज़ात हमें ये चाहती है हम जानें, हुज़ूर की बायोग्राफ़ी पढ़ें, हुज़ूर वाह की तालीमात में वो पहलू गौर से पढ़ें और सुनें उनको कि हुज़ूर की कुर्बानियाँ जो थीं, वो पुलों के नीचे 1 साल, 20 साल, 25 साल सोए, ये एक फ़िक्रा नहीं है। हाँ ये एक कर्बनाक, ना ख़त्म होने वाली और आँसुओं में बहा ले जाने वाली एक वाह वाह तकलीफ़ वाह दास्तान है। हम्म, ऐसी अनगिनत दास्तानें हैं जो इन किताबों में छुपी हैं। वाह वाह हम वो पढ़ते हैं और डूब जाते हैं, इसलिए खुदा को हमारी रूह पे रहम आता है और हम्म वो हमें हुज़ूर के साथ किए हुए वादों की वजह से अपना हम्म दीदार करवाता है, सफ़र करवाता है हम्म, और कभी-कभी शाबाश भी दे जाता है कि कैरी ऑन। वाह तो ये वाह हुज़ूर हमने सोचा कि आज हम मेंबरान को, हम नए आने वाले मेंबरान को ये बात रियलाइज़ करवाएँ कि हुज़ूर के साथ मिशन में काम करना तो अब हमारी एक ज़रूरत भी है, आदत भी है, मोहब्बत भी, तकाज़ा भी। हम्म, लेकिन हुज़ूर की ज़िंदगी को गहरे अंदाज़ में जानना ये अब खुदा की ख़्वाहिश है कि हम ये जानें, ताकि हम भी वैसे बन वाह सकें। वाह बहुत शुक्रिया हुज़ूर, खुदा की हाँ फ़िज़ा। जी जब आप ये सब माशाल्लाह कुछ बयान माशाल्लाह कर ये जब सब कुछ आप बयान कर रहे थे तो खुदा की कसम मैं खुदा के पर्वत पे बैठ के ये सब कुछ सुन रहा था वाह वाह वाह! वाह वाह! लगता है यहाँ बैठा था वो पर्वत जो खरबों खरबों ऊंचे हैं उन पर बैठ के मैं सुन रहा था और खुदा की कसम माउंटेन एवरेस्ट क्या है वहाँ उससे ही बड़ा पहाड़ थे कि वो मैं जब बैठा तो वो मेरी कुर्सी बन गए
बल्कि वो पहाड़ जब मैं बैठा तो नजर नहीं आ रहे थे। वाह! वाह बेशक। वाह तो प्यारे, ये खुदा की वो मोहब्बत है, न जाने कितनी दफा इस जिंदगी को ना मौत के आगे फेंका, कितनी बेशक। दफा अपने आप को इब्राहिम की तरह चाहा, लेकिन बच गए, वो अलग बात है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, 21 या 25 साल ये एक तो फिक्रे हैं, लेकिन इसमें मेरे जीवन की कहानी, बेशक। इस 21-25 साल का दौर जो गुजरा है वो मेरे लिए सदियां गुजरी। जी। तो वो कैसे बताऊं, वो तो जब आप जाएंगे ना ये रूह की दुनिया में, तो जन्नतों में आप देखेंगे मेरे सारे मिशन की आ, जब वो देखेंगे वाकयात, तो आप रो पड़ेंगे, अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं चला। वाह! मेरी एक महल के करीब से 2 शख्स गुजर रहे थे, महल के बाहर मेरी वीडियो लगी हुई थी, तो वो जिंदगी के वाकयात थे, मैं इस मिशन में कैसे चला, तो वो देख रहे थे और साथ साथ नूर के कॉइन निकाल के फेंकते जाते, वाह! तो उनको समझ नहीं लग रही थी कि वो ऐसे करके फेंकते जा रहे थे। तो जब नूर के कॉइन खत्म हो गए तब भी वो खड़े देखते रहे, काफी देर वो महल का पकड़ कर, जैसे कोई भूतनी बन जाता, जी, जी। रोते रहे, सोचते रहे। तो मैंने देखा वो महल में थे, तो मैंने कहा कोई अहले दिल है तो हम भी जाए। नीचे उतरा, पहुंचा उनके पास, उनके आंसू देखे, तो गले लगाया मैंने, तो नूर के जो कॉइन थे वो फैले हुए थे, वो मोहब्बत में फेंके जा रहे थे। वाह! तो मैंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम जिब्राइल के 2 बेटे हैं। वाह! 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 हम वाह ये वाह वाह हम अगर आप ना आते तो हम तो अपना देश ही भूल गए थे। वाह! तो वो जानते हैं कदर कीमत कि क्या बीत गया। अब आप देखें ना, खरबों डिनोसॉर से पहले भी खरबों इंसानी तारीख फैली पड़ी है। 6000 साल में 1,48,000 पे मरा है पैगंबर आए, तो फिर 6 लगाते जाए तो ना जाने कितने आए। जी। कभी इतना तो सोच के देखें, कुछ देर मेरे गम को महसूस करके देखो, सिर्फ ये सोच के देखें कि जन्म जन्म बीत गए, ये खुदा की दुनिया क्यों नहीं है, बस। जी। और फिर ये सोच के देखें हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम उसके जमाने में हैं जहां खुदा की दुनिया आएगी। वाह बेशक। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बस ये सोच जो है ना कि ये कैसा जमाना हमें दिया कि इस दफा खुदा की दुनिया आएगी, खुदा ने कह दिया, तो ये सोच ही आपको पर लगा देती है, पंख लगा बेशक। देती है। तो जी, ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। ज़रूर अभी और कोई सवाल नहीं है। कल के प्रोग्राम के हवाले से पूछना चाहेंगे, अगर आपकी तबीयत इजाज़त दे, आसानी के साथ आप जॉइन कर सकें, तो हम आपको सच्चे लम्हात पे इनवाइट करेंगे, वरना किसी और दिन जब आप कहें। कल अपना खुदा ने चाहा तो 11 बजे हम आ जाएंगे, जी, ज़रूर। और उनको बता देना क्या नाम है? सही साहब का। हाँ जी, तो वो जब चाहे वो मोजिज़ ख़वातीन आ जाए, जी, ज़रूर। तो मैं बातें ले लूँगा उनसे, ठीक है? जी, ज़रूर, मैं जी, या बिल्कुल। उनके साथ जो भी है।
जी। तो बस फिर इजाजत दे दें मुझे। जी हुज़ूर, बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी-सी न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी, हमारी जो थैंक यू किताब हजूर। चट्टा साहब मैं आज मैंने दोबारा जी 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 मैंने बस जी, हजूर को शुक्रिया। बताना था कि आज मैंने हजूर की आपकी किताबें खत्म की है, द वे बैक टू माय फादर, वो आज खत्म कर ली है, और आई लॉस्ट माय हार्ट इन गॉड, ये चारों वाली में पढ़ ली है। अब मैं हजूर आप क्या नसीहत करेंगे, अब मैं कौन सी किताब पढूं? वो हम कलामी पढ़ ली आपने? जी, हम कलामी खुदा के साथ, ये उन्होंने उर्दू में लिखी, मैंने इंग्लिश में पढ़ ली हुई है। किताबें तो बहुत हैं, देखिए कौन सी और है। वो मैंने अभी सही तरह नहीं पढ़ी, बिटर ट्रूथ अबाउट जीसस, वो शुरू कर दूं हजूर, हाँ सही तरह वो पढ़ लूं? वो कर दें। थैंक यू हजूर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाँ जी अता साहब। जी अतर भाई फरमाइए। जी, शुक्रिया जी। हुज़ूर वो मेरा दिल खुदा की याद में खोया गया। इसका जो पहला वॉल्यूम था उसको हमने उर्दू तर्जुमा उसका मुकम्मल कर दिया है जी, वाह तो वाह वाह आज रात ब्रदर हम्म, जूलियन को हम सेंड कर देंगे जी इसका उर्दू तर्जुमा। वाह वाह। खुदा आप पे इनायत रखे। आमीन आमीन। अब आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है, अब अगर इजाजत देंगे तो आपका बुराक मैं ही बन जाऊंगा। हुज़ूर बहुत शुक्रिया। आपको मेमरों को घोड़े पे बिठा के प्रवास कराता फिरूंगा। तो बल्कि खुदा ने एक बुराक मुझे दी है जिस पर 1000 अरबा बैठ सकती। जी, हुज़ूर। तो वो बड़ा, उसका चेहरा इतना, कोई उसके जैसा कोई होता नहीं, फीमेल जैसा। वाह! वो कहती मेरे पे वो बैठेगा जिसकी खुदा इजाजत देगा। वाह वाह। तो मैंने कहा ये तो कोई मसला नहीं है, खुदा तो अपना है। हाँ, वाह! जाना ही है ना, पूछना ही है। तो इतना देख लें, आपकी उम्र कितनी होगी इस वक्त? हुज़ूर 42 42। 30 साल आप लगा लें, बस यही उम्र है जो मिशन के काम आ सकती। बेशक। मैं अपना हिसाब किताब लगाऊं तो 15 साल या 20 साल जो उम्र काम आ सकती, जहाँ पे हिल जुल हो सकती, जी। फिर तो आदमी बेकार हो जाता है, नकारा हो जाता है। तो इस 30 साल के अंदर ना जाने कैसे कैसे काम ले ले खुदा आपसे। आमीन, आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो एक इसको रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं बता दूंगा कब वक्त है, ताकि तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। जी, हुज़ूर। और चटा को भी ले आना, क्योंकि इसको समझाना है मैंने। जी, हुज़ूर। जी हजूर, जी हजूर। और उसको भी ले आऊंगा जो हमारा स्टेफन, मैं और समझ गया हुज़ूर। जी, बिल्कुल ठीक है। स्टीफन। उनको भी ले आएंगे, क्योंकि मुझे दिखाया गया है कि इसके जरिए से भी लोग आए हैं। जी। हमारा चट्टा, तो फिर बात कर लेंगे, जी, जी हुज़ूर, जब जब आप हुक्म करेंगे जी हम ठीक हाज़िर है? हो जाएँगे। जी, तो बिल्कुल ठीक है। तरीका बड़ा आसान हो गया, वो अलहदा बात हो गई उसमें। हाँ जी, बिल्कुल जी, यहाँ पे चलो नहीं, बिल्कुल सही सही फरमाया आपने। अच्छा, तो फिर बिल्कुल। मुझे इजाजत दे दें। जी, ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। ब्रदर पैगम्बर सूरज खान भाई, अगर आप कोई बात हुज़ूर से या अपने इमरान से कहना चाहें? जी जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कोई और साहब कुछ? खुदा खुदा आपको अच्छी सेहत दे, जल्दी सेहत याब करे, मिशन के लिए आप काम करें मेरे प्यारे हजूर। आई लव यू सो मच। नहीं भी देगा तो काम तो मैंने वैसे ही करना जी। है। बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खुदा हाफिज।